Hi, I am Amit, Senior Mentor at MBAC. I welcome all of you to our YouTube channel. Students, in the last three videos, we have discussed the basics of percentage, and we have also demonstrated to you through several simple examples that there is a huge benefit in terms of time saving if you deal percentages in fractions rather than the conventional method. In this video, as the topic itself, as the heading itself is suggesting you, we are going to take up some previous year's CAT question on percentage and see if the learnings that we have seen in the previous three videos, which was primarily dealing percentages in fractions, can that concept be applied to the actual CAT question? And can we save time here also considerably or not? So let us test the idea. Let us jump start into solving some previous year's CAT questions. So here goes the first question. Okay. So the question says that in a group of people, 28% of the members are young and rest are old. यानी कि कुछ लोग हैं, there are some persons, उनमें से कुछ young हैं और कुछ old, right? Some are young, some are old. So young का percentage 28% है, old का percentage कितना होगा 72%. फिर कहता है if 65% of the members are literates, यानी कि जितने भी persons हैं उसमें से 65% literates हैं. इसका मतलब ये भी हुआ कि 35% क्या होंगे इलिटरेट्स होंगे, राइट. फिर कहता है एंड 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग. ओके, सो इस 65% में से 25% यानी 1/4, इसका 1/4 क्या है यंग लिटरेट्स है. कैन से 65/4% आर यंग लिटरेट्स. तो बाकी क्या होंगे ओल्ड लिटरेट्स होंगे, राइट. तो ये हमारा बेसिक डेटा है क्वेश्चन में दिया. नाउ जैसे मैंने आपको बताया था वी विल ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस बाय द फ्रैक्शन मेथड इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल परसेंटेज कैलकुलेशन. सो 28%, let us convert these percentages into fractions. Now 28%, 4% I know, 4% is 1/25. 4 into 7 is 28. So this is 7/25, right? Convert कर लिया fraction में. तो 7 out of 25 are young. So we can say 18 out of 25 are old, right? 1 minus 7/5, 7/25, 18/25, right? Now 65. I know 5% is 1/20 and 13 into 5 is 65. So I can say 13/20 in fraction terms are literates. So 1 minus 13/20, that is 7/20 are illiterates. Out of this 13/20, 1/4. So 1/4 of 13/20 will be 13/80. So 13/80 are young literates, right? So हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन के टर्म्स में भी आ गया. अगर टोटल लोग सपोज जो भी होंगे n होंगे, so 7/25 of n are young, 18/25 of n are old, 13/20 of n are literates, 7/20 of n are illiterates, and 13/80 of n are young literates, right? अब हम ये क्यों किए, आपको इसका बेनिफिट बहुत ऑब्वियस पता चल रहा होगा. अब हम टोटल नंबर ऑफ पर्संस ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये सारे नंबर्स इंटीजर में आए ना कि फ्रैक्शंस में, यानी 25 से डिविजिबल हो, 20 से डिविजिबल हो और 80 से भी डिविजिबल हो. सो विल टेक माय नंबर्स फ्रॉम माय नंबर सुटेबली. से लेट्स से 400 ले लिया आपने. ओके, नो 400 का 7/25, 16 7 या 112. दिस इज 112. बाकी बचा कितना 288. 13/20 और 400, 20 into 13 कितना हो जाएगा 260. बाकी 140 क्या हो जाएगा इलिटरेट. इसका 1/4 यानी कितना हो जाएगा 65. 260/4 65. तो सारे नंबर्स हमें आसानी से मिल गए. देयर इज हार्डली एनी कैलकुलेशन. दीज कैलकुलेशंस यू कैन डू मेंटली आल्सो इफ यू आर रीजनेबली गुड और समवट गुड इन डूइंग दीज टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस. सो अब हो गया, सारे नंबर्स आ गए हमारे. अब हमें निकालना क्या है, द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल, परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग इलिटरेट्स इज नियरेस्ट टू. बोलता है कि जितने भी इलिटरेट्स हैं उसमें से कितने परसेंट ओल्ड हैं. कितने इलिटरेट्स हैं टोटल 140 इलिटरेट्स है. क्वेश्चन में यही पूछा है, इस 140 इलिटरेट्स में से कितने परसेंट ओल्ड हैं. कैसे निकलेगा, हमें ये पता है कि 260 टोटल लिटरेट्स हैं, उसमें से यंग वाले लिटरेट्स कितने हैं 65. सो आई कैन से 260 minus 65, that is 195 old literates are there, isn't it? Because सारे लिटरेट्स में से 65 यंग है, 65 are young. So remaining 195 will be old. So there are total 195 old literates. And total old people are how many? 288. So I can say 280 out of total old people.
195 are literates, so remaining 93 will be illiterates. So I know the number of old literates. How many? 93. So out of total 140 illiterates, 93 are old. So percentage terms में कितना हो जाएगा? 93 out of 140 into 100, 27 या 25 जा. So 465 divided by 7, this is 66.4 something. So my answer is C option. It is nearest to 66%. So the whole problem was, he was hinging on the suitable estimation of total number of persons. अगर हमने सही total number of person assume कर लिया तो सारे numbers हमारे integer आएंगे, हमारा calculation simple होगा. लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पे total number of person को अगर हम उसे 100 ले लेते, 80 ले लेते, कुछ ऐसा number लेते जो सारे number हमारे integer नहीं आते, तो हमें problem हो सकती थी. सो हमें यही ध्यान देना था, यहाँ पे ऐसा नंबर लेना था टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिससे कि सारे नंबर्स हमारे इंटीजर आ जाए. सो यहाँ पे भी आया था, देखिए 112, 288, 260, 140, 65 सारे इंटीजर आ रहे हैं. यही हमें ध्यान देना था. ये कैसे समझ में आया? बाय कन्वर्टिंग दीज फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस. और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देख लिया हमने 25, 80 और 20. हमें ऐसा नंबर लेना था जो 25, 80, 20 सबसे डिविजिबल हो. हमने 400 ले लिया, हमारा काम काफी आसान हो गया. तो यही हमारा लर्निंग है. जब भी हम परसेंटेज यूज करेंगे, वी विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस. So you'll have lot of advantages, very distinct advantage compared to lot many other students who would be dealing percentage in the conventional format, right? Okay, guys. So let us, take up, some the another question. क्या कहता है? In an examination, maximum score is. So in an examination, the maximum score is n. So I know total marks is n. Maximum क्या हो सकता है? Total marks ही तो होगा. So maximum total marks कितना हो सकता है? n हो सकता है. तो pass mark is 45% of n. So 45% को अगर हम fraction में convert करें तो कितना हो जाएगा? 9/20 of n, because 1/20 is 5%. And 9 into 5 is 45. So 9/20 of n is my pass mark. फिर कहता है कि एक कैंडिडेट है जिसको 36 मार्क्स आता है. कैंडिडेट obtains 36 marks but fall short of the pass mark by 68%. So this 36 marks that the candidate has obtained, he is still 68% less than pass mark. Very poor performance, isn't it? 36 marks is still 68% less than pass mark. Now remember the class, second class on percentage basics. No, agar mere paas, if I have say some amount and somebody has 10% less than me, it means that he has 90% of my amount. If somebody has 20% less than me, means that he has 80% of my amount. If somebody has 25% less than me, means that he has 75% of my amount. So 36 marks is 68% less than pass mark, or we can say that this is 100 minus 68, that is 32% of pass mark. ठीक है? So इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं. We have discussed this very clearly, in a great length in the second basics class. So 68% less than pass mark is also same as 32% of pass mark. So I know 36 marks is 32% of pass mark, and 32% is 8/25. कैसे किया? 1/25 4%. 4 into 8 is 32. So 8/25 of pass mark. What is pass mark? 9/20 n. So 9/20 of n, and this is how much? 36. So 9 से कट जाएगा 4 times, 4 से कैंसिल होगा 2 times, 2 से स्ट्राइक हो गया 10 times. So we have n is equal to how much? 250. 250 किस रेंज में आएगा? इस रेंज में आएगा, देखिए 243 से 252 के बीच में 250 आएगा. How simple the question becomes if I'm using fraction instead of conventional method of calculating percentage. So there is a lot of merit in solving questions by using fraction method instead of the percentage method. If I had to solve this question on my own without bothering about explaining it to others, I could have started from here itself. बाकी चीज तो मेंटली हो जाता है, यहीं से स्टार्ट करता. 36 is equal to 32% of pass mark. Pass mark is 45%, that is 9/20 of n. I could have got my answer in less than 30 seconds, and so can you if you do it by fraction method and practice a little bit on percentage. Fraction. If you are comfortable dealing percentage as fractions, you can also solve it in probably less time than what I am taking.
because I'm getting older, your instincts will be much sharper than what my instincts are, right? Okay, so let us take up the third question. Okay, कह रहा है in a village the production of food grain is increased by 40%. So you have food grains और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन लेट्स से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर एंड करेंट, सो लास्ट ईयर जो भी था उससे 40% बढ़ गया। तो अगर हम लोग इसको मानेंगे सपोज यू नो 10x, लेट्स से 10x, तो 40% का इंक्रीज हो रहा है प्लस 40%, तो 40% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 14x। ठीक है, 1.4 माई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज 1 + 2/5 और 1.4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 14x। रिमेंबर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट, परसेंटेज सेकंड क्लास, राइट? If a quantity is increased by k%, we'll multiply that by 1 plus k by 100. So यहाँ पे भी 40% से increase हो रहा है, we'll multiply 10x by 1 plus 40 by 100, that is 1.4. 1.4 से multiply करेंगे कितना होगा 14x. Now you have population also. Population is also mentioned in the question, and then you have per capita production. ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है per capita production of food grain increased by 27%. Now per capita production होता क्या है? Suppose my population is y, so 10x total food grain प्रोड्यूस हुआ, टोटल पॉपुलेशन है y, तो पर कैपिटा जो पर पर्सन food grain production is how much? 10x by y. 10x total production divided by total population will give you per capita per person. Per capita means per person food production. So 10x by y. Now this 10x by y has increased by 27%. ठीक है, this has increased by 27%. तो 27% से इंक्रीज किया है। नाउ पूछा है कि पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज किया है, पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज किया है। तो मान लेते हैं कि माई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हियर is k, let's say my multiplication factor here is k, so I say this is ky, तुम्हारा कितना हो गया ये ky हो गया, population y से ky हो गया, we have assumed it and we'll try to find out the value of k। और हमें पता है कि यहां से यहां में तो कितना हो जाएगा 14x हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, टोटल पॉपुलेशन ky, तो पर कैपिटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 14x by ky, टोटल फूड ग्रेन अपॉन टोटल पॉपुलेशन 14x by ky। और यहां से यहां में कितने परसेंट का इंक्रीज है 27% का इंक्रीज है। आई नो 27% का इंक्रीज का मतलब है कि माय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी 1 + 27/100, दैट इज 127/100, यानी कि 10x by y में 127/100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 14x by ky। सो लेट्स डू इट, 10x by y into 127/100 is 14x by ky, xy कैंसिल हो जाएगा 10 से 10 टाइम्स, so you can say k is 140 by 127, तो लिख सकते हैं 1 + 13 by 127। now 13 by 127 as you can see, जब भी जैसे 27% का इंक्रीज था तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था 1 + 27/100। उसी तरह से अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 + 13 by 127 है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज होगा दैट विल बी 13 by 127 into 100 and this will be close to 10%. So my answer is C option, 10%. ठीक है, beautiful question, but a question which can be solved no in a simpler manner if you use fractions instead of percentage. So I'm using the multiplication factor concept here also. 1 plus k percent increase means 1 plus k by 100, x percent increase means 1 plus x by 100 से multiply करना होगा, x percent का decrease मतलब 1 minus x by 100 से multiply करना होगा। So this concept we are using it and we had discussed this concept in the second class of percentage basics. Okay, so this was my question. इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बट विल डिस्कस दैट समटाइम लेटर, नो दैट इज नो दैट विल टेक स्टिल नो इवन मच लेस टाइम टू सॉल्व, बट विल नॉट डिस्कस दिस नो एट दिस मोमेंट बिकॉज नो सम अदर आई नीड टू टेल यू सम मोर कॉन्सेप्ट्स फॉर दैट, सो विल डिस्कस दैट नो समटाइम लेटर। So this is my another question here, let's see।
व्हाट इट सेज, कहता है सोया सीड कंटेन 40% ऑयल बाय वेट। सो योर सोया सीड, इसमें 40% ऑयल है। अगर 40% ऑयल है तो बाकी 60% क्या होगा, पल्प होगा, द फाइब्रस सब्सटेंसेस, राइट। एंड फिर कहता है ऑयल इज पार्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट एंड व्हाट रिमेन्स इज सोया केक। सो व्हाट यू डू, you prepare soya cake and oil. So oil is extracted from it and what remains is soya cake. Now soya cake contains 10% oil by weight. So 10% oil, see, 10% oil by weight. Soya cake which contains 10% oil by weight. तो 10% ऑयल है सोया केक में, तो बाकी 90% क्या होगा, पल्प होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 100% ऑयल ही होगा। ऑयल में तो ऑयल ही होगा, ऑयल में तो पल्प होगा नहीं। सो दिस इज माई बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। फिर कहता है इफ अ पर्सन वांट्स टू गेट 60 केजी सोया ऑयल, एक पर्सन को कितना चाहिए, 60 केजी सोया ऑयल चाहिए। तो बोलता है हाउ मच केजी सोया सीड should he purchase given that 10% of the soya seed is stolen. Okay, so we'll bother about stolen thing later on. पहले यहाँ पे देखते हैं कि कितना सोया सीड लिया जाए तो उसमें से कितना सोया केक निकलेगा और कितना ऑयल होगा। पहले ये हम लोग डिसाइड किया कैसे करेंगे, देखिए। लेट्स से दोनों जगह में पल्प का क्वांटिटी, जितना पल्प का क्वांटिटी सोया सीड में होगा उतना ही पल्प का क्वांटिटी सोया केक में भी होगा, बिकॉज दोनों जगह यही पे पल्प है। जब हम सोया सीड से ऑयल निकाल लेते हैं तो जो बचता है वो सोया केक है, यानी सोया सीड का पूरा पल्प सोया केक में ही रहेगा, बिकॉज ऑयल तो 100% ऑयल ही है। सो लेट्स से इफ दिस इज एक्स, टोटल सोया सीड इज एक्स, ठीक है, टोटल सोया केक इज वाई, मान लेते हैं ऐसा। नाउ इसका 60% क्या है, पल्प है। 60% इज हाउ मच, 3/5। सो आई नो 3x/5 इज पल्प, और y का 90% पल्प है, तो 90% इज हाउ मच, 9y/10। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर x केजी सोया सीड से y केजी सोया केक बनता है तो x केजी सोया सीड में जितना पल्प होगा y केजी सोया केक में उतना ही पल्प होगा, बिकॉज पल्प तो यही है और तो कहीं है नहीं। सो आई नो 3x/5 इज इक्वल टू 9y/10, 2 times 3 times। So I know x is equal to 3y/2, x is 3y/2, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक समझ में आ रहा है। सो आई नो यहाँ से इसे x is to y भी निकाल सकते हैं। x is to y यहाँ से आ जाएगा 3:2, कितना आ गया, 3:2, x/y is 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 3k सोया सीड है तो उससे 2k सोया केक बनेगा, बिकॉज 3:2 रेशियो आना चाहिए x और y का, दोनों के वेट का रेशियो 3:2। सो 3k से 2k अगर सोया केक बना है, यानी कि ऑयल कितना होगा, ऑयल होगा कितना, 60 केजी। वंडरफुल, क्योंकि 2k प्लस k 3k, और 3k मास तो बैलेंस होना चाहिए ना, जितना मास सोया सीड का है उतना ही मास सोया केक प्लस ऑयल का होना चाहिए, बिकॉज वेट तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा। सो 3k से 2k सोया केक बना, यानी बाकी k क्या बन गया, ऑयल बन गया। k का वैल्यू मालूम है कितना, 60 केजी। सो k इज 60 केजी। सो 3k कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा 60 इंटू 3 कितना, 180 केजी। यानी 180 केजी सोया सीड रहेगा तो हमें 60 केजी सोया ऑयल मिलेगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि 10% ऑफ द सोया सीड इज स्टोलन, ठीक है। 10% सोया सीड क्या है, चोरी हो गया है। सो इसका मतलब है कि ये जो 3k है दिस इज ओनली 90%। ये कितना है, 90%, बिकॉज 10% तो स्टोल हो गया है। सो आई नो 90% ऑफ सोया सीड इज 180। सो 10% कितना होगा, 20। सो आई नो 100% इज हाउ मच, 200। सो 100% कितना होगा, 200 केजी। सो 200 केजी हमें क्या लगेगा, सोया सीड, उसका 10% यानी 20 केजी निकल जाएगा। 200 का 10% 20 केजी निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 180, और 180 से हमें कितना मिल जाएगा, 60 केजी ऑयल मिल जाएगा। सो द आंसर हियर इज 200 केजी। वेरी गुड क्वेश्चन। नो, यहाँ पे हमें थोड़ा मास बैलेंसिंग भी करना था। पल्प के क्वांटिटी वाज द मेन थिंग, कि दोनों जगह सोया सीड और सोया केक दोनों में पल्प का क्वांटिटी सेम रहेगा। सो यहाँ पे अगर x केजी है और ये y केजी है तो x केजी का 60% पल्प है,
y kg का 90% पल्प है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यहाँ से x और y का रेशियो 3:2 आ गया, यानी ये 3k तो ये 2k, यानी ये k होगा, तभी तो 3k 3 के बराबर होगा। यानी कि k ऑयल चाहिए तो 3k सोया सीड चाहिए, तो 60 चाहिए तो 60 into 3 180 ml सोया सीड चाहिए। 180 is only 90% because 10% स्टोर हो गया था, तो 90% is 180, so 100% is how much? 200। वेरी गुड क्वेश्चन। एंड यहाँ पे भी हम परसेंटेज यूज कर रहे हैं, 60% की जगह 3/5 यूज कर रहे हैं, 90% की जगह 9/10 यूज कर रहे हैं। So we have seen in these 4 questions in today's video, this video, that even in CAT questions which have appeared in CAT, we can solve it, the question in much simpler way, in very less time, if we use fractions instead of percentage. I hope you have further, reinforced your idea of using fraction whenever possible in percentage related questions. Thank you guys. We'll come up with some more interesting questions in the next video. Till then, have a good day and best wishes.